آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈفرینس بٹوین ہیجر، اسپیکولیٹر اینڈ آربیٹراجر۔ ان تینوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہیجر کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہیجر از ایکسپوز ٹو رسک، یعنی کہ ہیجر اپنے رسک کو کم کرتا ہے جو اس کا اپنا رسک ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو جب آپ کوئی نئی گاڑی لیتے ہیں اور اس گاڑی کا رسک کیا ہے کہ وہ کل کو ایکسیڈنٹ کے دوران اس کو ڈینٹس وینٹس آ سکتے ہیں اور یا تو وہ بالکل ہی تباہ ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کیا، آپ نے اس رسک کو ہیج کرانے کے لیے انشورنس سروس بائی کر لی۔ کیونکہ یہ گاڑی آپ کی تھی تو ریئل رسک بھی آپ کا ہی تھا۔ یو آر ایکسپوز ٹو یور اون رسک بیکاز آف دا کار دیٹ یو آر بائنگ۔ تو ایسے رسک کو جو آپ کا اپنا رسک ہو، اس کو جب ہم ہیج کرتے ہیں تو اس کو جو ہیج کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم ہیجر کہتے ہیں۔ اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں۔ فار انسٹنس آپ ایک امپورٹر ہیں جس کو مال چاہیے، فار انسٹنس یو ایس اے سے۔ اب اس نے کچھ مال خریدا ہے یو ایس اے سے آج، فار انسٹنس 1 جنوری 2021، جس کی پیمنٹ تبھی پاسبل ہے جب آپ کے پاس وہ مال ڈیلیور ہو جائے۔ آج 1 جنوری 2021 کو جو ایکسچینج ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے پاکستان ورسز یو ایس ڈی کا، وہ ہے $1 equal to 100 روپیز فار انسٹنس۔ یہ انریلسٹک ایکسچینج ریٹ ہے، ریئلسٹک نہیں ہے، ہم ایگزامپل کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسچینج ریٹ روز ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اب آپ کے لیے یہ رسک کھڑا ہو گیا کہ 30 دن بعد جب مجھے یہ گڈس ڈیلیور ہوں گے یو ایس اے سے تو اس وقت کیا ایکسچینج ریٹ ہوگا۔ فار انسٹنس آپ نے $5 کا مال خریدا، اس وقت کیونکہ ایکسچینج ریٹ $1 equal to 100 ہے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ مجھے 500 دینے پڑیں گے۔ however آپ کو یہ نہیں معلوم کہ 30 دن بعد کیا ایکسچینج ریٹ ہوگا اور اس کے مطابق مجھے کتنی پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ایکسچینج ریٹ امپروو ہوگا یا ڈکریز ہوگا، کیا مجھے زیادہ پیمنٹ کرنی پڑے گی یا کم پیمنٹ کرنی پڑے گی، اس کے بارے میں آپ بالکل بھی نہیں جانتے، اور یہی آپ کا رسک ہے جس کی وجہ سے آپ اس رسک کو سیو کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس رسک کو آپ کس طریقے سے سیو کر سکتے ہیں؟ آپ نے یہ سمجھا کہ کل کو ایکسچینج ریٹ پاکستان اور یو ایس اے کا 30 دن کے بعد 1 USD equal to 200 روپیز ہو جائے گا۔ آج 1 USD equal to 100 روپیز تھا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ روپی کل کو ڈیپریشیٹ ہوتے ہوتے 200 روپیز پر ڈالر ہو جائے گا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس رسک سے بچوں تاکہ مجھے کل کو 1000 روپیز پیمنٹ نہ کرنی پڑے، جو میرے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ ڈالر 30 دن بعد 200 کا ہو جائے گا۔ آپ نے کسی سے رابطہ کیا، آپ نے کہا کہ ہم ایک فارورڈ کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ فارورڈ کانٹریکٹ دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے، پرائسز ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں۔ آپ نے اس کو کہا کہ بھائی صاحب آج جو ہے وہ ڈالر کی پرائس 500 ہے، 100 ہے، میں آپ سے 30 دن بعد یہ جو ہے ڈالر 120 کا خریدوں گا۔ اب اس بندے کو لگ رہا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے جائے گا اور
30 दिन बाद ये डॉलर जो आज 100 का मिल रहा है वो 80 का मिलेगा। उसने कहा कि ये तो बंदा बड़ा बेवकूफ़ है, अच्छी बात है, मैं इसको 120 में बेच देता हूँ। आपने 120 की प्राइस पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसका मतलब क्या हुआ कि 30 दिन बाद आपको डॉलर इसी प्राइस पे मिलेगा, वो बंदा आपको इसी प्राइस पे डॉलर देगा। यानी कि अब जब 30 दिन गुजर जाएंगे आपके पास माल आएगा जो कि पहले 500 के माल था, अब वो आपको जितनी भी प्राइस हो उस वक्त डॉलर की उस पे नहीं मिलेगा। अब आपको सिंपली $5 देने हैं। अब वो $5 आप ख़रीदेंगे 120 रुपये में, जिस पे आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब 120 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 600। तो अब आपको 600 रुपीज़ देने पड़ेंगे उस बंदे से। $5 आपने ख़रीदे और $5 की आपने पेमेंट कर देनी है। अब आपने ये रिस्क को हेज किया, जिसको आप समझ रहे थे कि मुझे डॉलर की प्राइस 200 देनी पड़ती, जिसकी वजह से मुझे 1000 रुपया देना पड़ता $5 के लिए। अब आपने क्या किया? आपने 120 पे ही डॉलर को हेज कर लिया और आपने वही प्राइस दे के आपने अपनी पेमेंट कर दी। अब ऐसा भी मुमकिन है कि आपने 120 का लिया और वो डॉलर 80 का हो गया, तो अब 80 मल्टीप्लाई बाय 5 वो 400 को आपको मिल जाता। क्योंकि आपने रिस्क हेज किया, आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा रिस्क है, अब थोड़ा सा नुकसान इंसान बर्दाश्त कर लेता है ज़्यादा नुकसान बचने के लिए। तो हेजिंग में आप रिस्क को कंट्रोल करते हैं और इस दौरान आपको नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी हेजिंग में कोई रिस्क है ही नहीं। आप अपना नुकसान कंट्रोल कर रहे हैं। ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए थोड़ा सा नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान जो आपको होने जा रहा था आप उससे बच सकते हो। कल को अगर वो डॉलर 200 का हो जाता तो आपको 1000 भी देना पड़ सकता था, जिसकी वजह से आपके इस वक्त अगर उस हिसाब से हम सोचें तो हमारे 400 बच गए। ठीक है, तो इस तरह से आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपना रिस्क हेज किया। इसी तरीके से इंश्योरेंस जब आपने करवाई थी गाड़ी की, तो आपकी गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ उसमें शायद गाड़ी तबाह हो सकती थी और उससे आप बच सकते थे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे प्रीमियम लिया और जिसकी वजह से उसके बाद आपकी गाड़ी फॉर इंस्टेंस किसी वजह से जो है वो एक्सीडेंट में तबाह हो गई, किसी ना किसी खाई में जाके गिरी। उसके बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको जो है वो क्लेम दिया और गाड़ी आपको न्यू बनवा के दे दी। तो इस तरह से आपका जो इतना बड़ा गाड़ी का नुकसान था वो बच गया इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद। तो इंश्योरेंस पॉलिसी को सिर्फ आपने प्रीमियम पे किया, यानी कि आपने कुछ पैसे दे के बड़ा नुकसान अपना सेव कर लिया। तो इसी सेवर को जो कि हेजर है, जिसका एक्सपोजर टू रिस्क उसका अपना है, उसके पास अपनी गाड़ी थी जिसकी वजह से उसके पास नुकसान था, उसने जब माल लिया उसको पेमेंट करनी थी, उसकी वजह से उसको जो नुकसान होने जा रहा था उसको सेव किया, यानी कि इसका अपना रिस्क था जिसको इसने हेज करा। तो उसी हिसाब से हम इसको हेजर कहते हैं। अब हम स्पेक्यूलेटर की बात करते हैं। देखिए, स्पेक्यूलेटर वो शख्स होता है जिसका अपना रिस्क एक्सपोजर नहीं होता। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं ना इम्पोर्टर हूँ ना मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं एक बंदा हूँ जो कि ट्रेडिंग करता है करेंसीज की। वो क्यों करता है? क्योंकि वो उसको मुनाफा चाहिए। वो एक इन्वेस्टर है जो कि इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को जानता है। उसको ये पता है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकता हूँ। उसने डिफरेंट टेक्निक्स सीखी हुई हैं, हेड एंड शोल्डर की टेक्निक सीखी हुई है, मूविंग एवरेजेस की टेक्निक सीखी हुई है। अब इन टेक्निक्स से वो ये अंदाज़ा लगाने में कामयाब होता है कि कल को डॉलर ऊपर जाएगा या रुपी ऊपर जाएगा या डॉलर नीचे जाएगा या रुपी नीचे जाएगा। तो उस हिसाब से वो ट्रेडिंग करता है। वो ये देखता है कि मैं कल को प्रॉफिट कमा सकूं। अगर उसको लगता है कि कल को डॉलर ऊपर जाएगा तो वो आज
डॉलर ख़रीद लेगा और जब वो ऊपर चला जाएगा तो वो फ्यूचर में उसको सेल करके उसके अगेंस्ट बहुत सारे रुपीस कमा सकता है। तो ये स्पेकुलेशन होती है जो स्पेकुलेटर करता है, जिसका अपना रिस्क नहीं होता। उस बंदे के पास ना पेमेंट करनी थी ना पेमेंट आनी थी, तो अगरचे वो ये ट्रेडिंग ना करता तो उसका कोई रिस्क ही नहीं था कि उसका डॉलर जो वो ऊपर जाने को समझ रहा था वो शायद कल को नीचे भी जा सकता है, तो उसको लॉस हो सकता है। लेकिन इस लॉस से वो बच सकता था आराम से। अगर वो ट्रेडिंग ही ना करता, वो करेंसी को बाई ना करता, तो कल को जो उसको नुकसान होने जा रहा था वो होता ही नहीं। लेकिन हमने जब हेजर की बात की तो हेजर को पेमेंट करनी थी, तो हेजर इस नुकसान से बच नहीं सकता था। उसका अपना नुकसान होने जा रहा था, उसका अपना एक्सपोजर था रिस्क जिसको उसने हेज किया। तो इसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि स्पेक्यूलेटर का अपना एक्सपोजर नहीं होता रिस्क से। वो खुद ये अपॉर्चुनिटी लेता है कि मुझे प्रॉफिट हो, और जब प्रॉफिट होने की अपॉर्चुनिटी आप लेते हो तो आपके पास रिस्क आएगा ही आएगा, और लॉस पॉसिबल है इसमें, क्योंकि आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। किसी को लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, किसी को लग रहा है प्राइस कम होगी, तो उस हिसाब से आपको नुकसान हो सकता है। आपकी जो भी प्रोडक्शन है वो गलत हो सकती हैं। ये एक सट्टाबाजी है, जुआ है, जो डिफरेंट ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो खेलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सचेंज मार्केट हो, वो कोई भी मार्केट हो सकती है। आपके पास स्टॉक मार्केट हो सकती है, आप चाहे कमोडिटीज़ मार्केट में ही हो, आप ऐसी ट्रेडिंग कर सकते हो। स्पेकुलेशन के हिसाब से आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगाते हो, पास डेटा को आप देखते हो, ट्रेंड्स देखते हो, और फिर आप फोरकास्ट करते हो। तो इससे आपकी स्पेकुलेशन पॉसिबल होती है, जिसमें आपका अपना एक्सपोजर नहीं होता रिस्क का, जबकि हेजिंग में अपना एक्सपोजर होता है आपको रिस्क का। अब हम समझते हैं आर्बिट्राज को। आर्बिट्राज को समझने के लिए पहले आर्बिट्राज समझते हैं। देखिए, आर्बिट्राज तभी पॉसिबल है जब दो मार्केट्स में दो डिफरेंट प्राइसेस हों एक ही वक्त। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहूँ कि एक स्टॉक है जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक प्राइस में मिल रहा है, फॉर इंस्टेंस 100 रुपीज़ में मिल रहा है, और उसी कंपनी का वही स्टॉक उसी वक्त लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में 120 का मिल रहा है। तो आप क्या करेगा ट्रेडर, वो कंप्यूटर खोलेगा, एक वेबसाइट पे जाएगा और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज पे वो स्टॉक ख़रीदेगा, और कराची में वो कराची में जहाँ पर उसको 100 में मिल रहा था वहाँ से ख़रीदेगा और लाहौर में जाके सेल कर देगा 120 का। तो इस तरह से उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये जो प्रॉफिट होता है आर्बिट्राज में वो रिस्क फ्री होता है, क्योंकि आपने एक जगह बाय किया है और दूसरी जगह आप उसी वक्त सेल कर देते हो, और आपको प्राइसेस का भी मालूम है। तो इस तरह से आपको एक सर्टेनिटी होती है, एक श्योरिटी होती है कि मुझे मुनाफा होगा, और कितना मुनाफा होगा ये भी आपको मालूम होता है। अब ऐसी सूरत में प्रॉफिट्स बहुत कम मतलब मिकदार में होते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट जमा होगा, वरना आपको कोई भी प्रॉफिट जो होगा वो बहुत ही कम अमाउंट का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये प्रॉफिट रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है। आप दो मार्केट्स की इनएफिशिएंसीज़ को समझ के ही जो है वो पोजीशंस लेते हैं, एक जगह में बाय कर लूँ, एक जगह में सेल कर लूँ। सो इस तरह से आर्बिट्राजर का रूल है जो कि डिफरेंट मार्केट्स में ऑपरेट करता है, या फिर वो कंप्यूटर के ज़रिए डिफरेंट मार्केट्स की इंफॉर्मेशन लेता है, और जहाँ पे उसको डिफरेंट प्राइसेस नज़र आती हैं एक ही टाइम पे डिफरेंट मार्केट्स में, तो वो उसमें पोजीशंस लेते हुए एक जगह से सस्ता बाय करेगा और दूसरी जगह ज़्यादा महंगा सेल करते हुए प्रॉफिट कमा लेगा। अब इसमें भी क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो आर्बिट्राजर होता है उसका अपना रिस्क नहीं होता। अब एक जगह मैं करेंसी बाय कर रहा हूँ, एक जगह मैं करेंसी सेल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना एक्सपोजर नहीं है। मुझे ये ट्रेडिंग इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मैं
इनएफिशिएंसीज देख रहा हूँ, डिफरेंसेस देख रहा हूँ प्राइसेस में दो मार्केट्स में, एक ही कमोडिटी, एक ही करेंसी की, जिसकी वजह से ही मुझे जो है ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, और जिसकी वजह से मैं ये रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाने के लिए ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को अवेल करता हूँ, ना कि मेरा अपना कोई रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सो आर्बिट्राज क्या करता है, एक्सप्लॉइट द प्राइस इनएफिशिएंसीज बाय मेकिंग साइमल्टेनियस ट्रेड दैट ऑफसेट ईच अदर टू कैप्चर रिस्क फ्री प्रॉफिट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, यही आर्बिट्रेजर की जो है वो प्रैक्टिस होती है, जो दो मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस की वजह से एक ही कमोडिटी की एक ही वक्त में होने की वजह से वो प्रॉफिट्स कमाता है, जो रिस्क फ्री प्रॉफिट्स होते हैं। होपफुली आपको ये डिफरेंस मालूम हुआ होगा कि आर्बिट्राजर का कोई रिस्क नहीं होता, स्पेकुलेटर का रिस्क होता है, इसी तरीके से हेजर के पास भी रिस्क होता है। जबकि आर्बिट्राजर और स्पेकुलेटर जो हैं वो रिस्क से एक्सपोज नहीं होते, जबकि हेजर रिस्क से एक्सपोज होता है। सो यही मेन डिफरेंसेस हैं इन तीनों में। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।